Good morning, all of you. Today we will discuss about the electrochemistry. So, students, firstly we study the topic conductor. Conductor. What are the conductors? Those type of substance which have the free electron and able to flow of current are known as the conductors. Like as all the metal rods, ठीक। नेक्स्ट देखें इलेक्ट्रोलाइट, केवल टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तो स्टेट्स इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स द aqueous solution of that salt, the aqueous solution of that salt which able to pass or flow of current called as the electrolyte. In other words, we can say that those type of substance which are completely ionized in water or 100% ionized, 10% ionized are known as the electrolyte. So students, we divide the electrolytes into two types. First, strong electrolyte. Strong electrolyte. Strong electrolyte, those type of substance is dissolved in water. They are 10% ionized, are known as the strong electrolyte, such as KCl, NaNO3, BaCl2. It means the salt of all the alkali metal are always known as the strong electrolyte which obey to Ohm's law. ओके स्टूडेंट्स, ठीक। नेक्स्ट देखें वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? दोज टाइप ऑफ साल्ट और सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर, they ionize in minimum amount. It means उनका कुछ अमाउंट ही वाटर में डिजॉल्व करने पर आयनाइज होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, लाइक एज CH3, COOH, HCl, CH3C, OONA, NH4OH। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सब होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपका लॉ ऑफ मास एक्शन रूल को फॉलो करते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपका ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। Conductance of electrolyte. The easy flow of current in any aqueous solution. The easy flow of current in any aqueous solution is known as the conductance of electrolyte. Right? कंडक्टेंस की स्टडी करने से पहले हमें एक चीज विशेष आपको इस चीज को मतलब अंडरस्टैंडिंग में लाना है, ओम्स लॉ। Ohms. So the students will be study the Ohms law. Ohms law. The potential difference present upon any conductors is directly proportional to its flowing of current. It means V, potential difference, is directly proportional to current I. It can be write B equal to R I.
स्टूडेंट्स बी इक्वल टू क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, आर रेजिस्टेंस, आई करंट, आई करंट। तो देखिए आर इक्वल टू बी अपॉन आर। यूनिट देखिए, यूनिट ऑफ आर क्या है आपका रेजिस्टेंस है, यूनिट ऑफ आर और रेजिस्टेंस दिस इक्वल टू, देखिए पोटेंशियल के यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट आपकी वोल्ट, क्या हो गया वोल्ट, और ये क्या है करंट है, करंट की यूनिट हो गई एम्पियर। वोल्ट अपॉन एम्पियर दिस इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स ओ, ओ और ओम जो रेजिस्टेंस का यूनिट है, और रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस इज आल्सो रिप्रेजेंट बाय, ये साइन देखिए स्टूडेंट्स, ये ओमेगा वाला है, इट मीन्स हम रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है ओम है, और रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ओम यानी ओमेगा से। स्टूडेंट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर which have the resistance of that conductor which have the length 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square is known as the specific resistance, and specific resistance is always known as the resistivity. We know that R is directly proportional to the length of electron, and R is inversely proportional to the area of cross section of electron. Now combine equation first and second. R proportional L upon A. Okay. Hence, we can write R equal to rho L upon A. Students, R आप जानते हैं R इक्वल टू क्या होगा आपका रेजिस्टेंस, रो इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, specific resistance, and L equal to length of इलेक्ट्रोड और कंडक्टर, आप लिख सकते हैं कंडक्टर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड लिख सकते हैं, और A इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Now the unit of resistivity or specific resistance, unit of rho, रो से प्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए। रो का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, रो इक्वल टू क्या कर लेंगे आप आर ए अपॉन एल, आर आर का यूनिट हो जाएगा देखिए ओम, एरिया का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, और लेंथ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से देखिए 1 सेंट गया, स्क्वायर को आपने रिमूव कर दिया यहाँ से, क्या हो जाएगा आपका ओम इनटू सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका रो का यूनिट स्टूडेंट्स, रो इक्वल टू क्या होगा ओम सेंटीमीटर।
conductivity. Conductivity, write in the term of conductivity or conductance. Conductance भी लिखा जाता है. Conductance is that easy flow of current in any conductor which always equal to the inverse of resistance. It means C equal to 1 upon R. Conductivity क्या है students? Conductivity is always equal to the inverse of resistance. Inverse यूनिट क्या होगा? यूनिट देखें इसका. यूनिट इक्वल टू होगा, देखिए C इक्वल टू क्या आपका 1 अपॉन ओम. क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ओम इनवर्स. ओम इनवर्स ये कंडक्टिविटी का. नाउ द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये क्या होता है स्टूडेंट्स? द कंडक्टिविटी of that conductor which have the length 1 centimeter and area of cross section 1 centimeter square is always called as the specific conductivity which is represent by कप्पा. ये साइन होता है के तरह. देखिए एक आर्म से इसको नीचे को बढ़ा दीजिए. इसको क्या, ये लैटिन वर्ड है कप्पा बोला जाता है. कप्पा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक. और स्टूडेंट्स कप्पा इक्वल टू होगा आपका 1 अपॉन रो. इसकी एक डेफिनेशन आप इस तरीके से, कप्पा इज ऑलवेज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. कंडक्टिविटी किसके इक्वल है? कंडक्टिविटी इक्वल टू द रेजिस्टेंस इनवर्स के है. और जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है आपका इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. नाउ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. कप्पा इक्वल टू क्या होगा? रो की आप वैल्यू दीजिए यहाँ पर 1 अपॉन रो है. रो की वैल्यू कर दीजिए आर. ए अपॉन एल होगा. एल को ऊपर ले जाइए तो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए. ये हो गया आपका फार्मूला. देखिए स्टूडेंट्स इसका यूनिट देखेंगे. यूनिट लगाइए. यूनिट क्या होगा? 1 अपॉन आर का क्या हो गया? 1 अपॉन ओ इंटू एल का क्या हो गया आपका? सेंटीमीटर. ये क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर. स्क्वायर से सेंटीमीटर कट कर दीजिए. क्या हो गया यूनिट आपका? ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स. और ओम इनवर्स 1 ओम इनवर्स दिस इक्वल टू होता है साइमेंज. साइमेंज को डिनोट करते हैं एस. इट मीन्स यूनिट ऑफ के ये भी लिखा जा सकता है. यूनिट ऑफ कप्पा दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? साइमेंज एस एंड सेंटीमीटर इनवर्स. ये यूनिट भी आपका किसका? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कप्पा का हो सकता है. ओके, थैंक्स.